بہت پرانی بات ہے۔ کسی جگہ پر ایک گڈریا رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک کتا تھا۔ اس کتے کا نام سلطان تھا اور اب وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس کتے کے سارے دانت گر چکے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، گڈریا اور اس کی بیوی اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ باتوں ہی باتوں میں گڈریا اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ کل صبح میں سلطان کو گولی مار کے ہلاک کر دوں گا۔ کیوں؟ وہ کیوں؟ تم اسے کیوں مارو گے؟ اس کی بیوی نے حیرانی سے دریافت کیا۔ اس پر گڈریا نے جواب دیا، اب یہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے دانت بھی گر چکے ہیں اور اب یہ ہمارے کسی کام کا نہیں رہا۔ ایسا ظلم نہ کرو، اس پر رحم کھاؤ۔ اس کی بیوی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اس بیچارے نے برسوں ہماری خدمت کی ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کے بڑھاپے میں ہم اسے آرام پہنچائیں، لیکن ایک تم ہو جو اسے مارنے پر تل گئے ہو۔ اسے ماروں نہ تو اور کیا کروں؟ گڈریا قدرے غصے میں بولا۔ اس کے منہ میں ایک بھی دانت نہیں رہا اور چور اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس نے ہماری خدمت کی ہے اور اس وقت یہ کام بھی کرتا تھا، لیکن اب تو یہ باڑے کی حفاظت بھی نہیں کرتا، اس لیے اسے زندہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، کل اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ادھر یہ دونوں میاں بیوی اپنے گھر کے باہر کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور دوسری طرف ان کے قریب لیٹا ہوا بوڑھا سلطان سب کچھ سن رہا تھا۔ جب اس نے یہ سنا کہ کل میری زندگی کا آخری دن ہوگا تو وہ بہت گھبرایا اور اپنے آپ سے کہنے لگا کہ اب میری جان کی خیر نہیں ہے۔ اس کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ اس کا مالک بہت ظالم ہو گیا ہے اور اس کے دل میں ذرا سا بھی رحم نہیں ہے اور مجھے مارنے پر تل گیا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ تھا کہ میری خدمت کے صلے میں میرا بڑھاپا آرام سے گزرتا۔ وہ یہی کچھ سوچ رہا تھا کہ اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ میں ایک بھیڑیے کو جانتا ہوں جو بڑا ذہین اور میرا دوست ہے۔ مجھے اس کے پاس جا کر اسے ساری بات بتانی چاہیے۔ وہ یقیناً مجھے کوئی ایسی بات بتائے گا جس سے میری جان بچ جائے گی۔ مجھے ضرور اس سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ابھی اس کے پاس جاتا ہوں۔ یہ بھیڑیا قریبی جنگل میں رہتا تھا۔ جیسے ہی شام ہوئی تو یہ بوڑھا سلطان گڈریا اور اس کی بیوی کی نظر بچا کر ادھر نکل آیا۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر آیا تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اس نے جنگل کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اگرچہ وہ بوڑھا تھا اور تیز بھاگنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ پوری طاقت سے زور زور سے بھاگ رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد اس بھیڑیے کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا۔ جب وہ جنگل میں پہنچا تو دیکھا کہ خوش قسمتی سے بھیڑیا اپنے گھر پر ہی موجود تھا۔ کتے نے جاتے ہی ہانپتے کانپتے اپنی داستان سنانا شروع کر دی۔ میرے اچھے دوست، میں تمہارے پاس بہت ضروری کام سے آیا ہوں اور میں اس وقت بہت ہی بری مشکل میں پھنسا ہوا ہوں۔ میری جان خطرے میں ہے، مہربانی کر کے میری مدد کرو اور میری جان بچاؤ۔ وہ گھبرایا ہوا اور ڈرا سہما جلدی جلدی بولے جا رہا تھا۔ بھیڑیے نے اسے ٹوکا کہ آخر مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا؟ تم اس طرح سے گھبرائے ہوئے کیوں ہو اور میں کس کام کے لیے تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ اس پر کتے نے اسے بتایا، میں برسوں سے اپنے مالک کی خدمت کر رہا ہوں اور اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے دانت گر چکے ہیں اور اب میں باڑے کی رکھوالی نہیں کر سکتا۔ بس یہی وجہ ہے کہ میرا مالک مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے اور کل وہ مجھے گولی مار کر ہلاک کر دے گا۔ تم بہت عقل مند ہو اور میرے اچھے دوست ہو، خدا کے لیے مجھے کوئی ایسا مشورہ دو جس سے میری جان بچ جائے۔ میں زندگی بھر تمہارا احسان نہیں بھولوں گا۔ وہ یہ سب ساری باتیں ایک ہی سانس میں کہہ گیا۔ اس نے بھیڑیے کی تعریف بھی کرتی، جس سے بھیڑیا بہت خوش ہوا اور اس نے سلطان کی مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے کہا، حوصلہ کرو، صبر کرو، میں تمہیں ایک ایسا مشورہ دیتا ہوں جس سے تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ بوڑھا سلطان بےتاب ہو کر بولا، وہ کیا؟ جلدی بتاؤ۔ لو سنو، غور سے سنو اور جو کچھ بھی میں بتاتا جاؤں اس پر عمل کرتے جانا۔ بھیڑیے نے اسے بتانا شروع کیا، تم جانتے ہو کہ صبح سویرے تمہارا مالک کھیت میں چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کی بیوی اور اس کا بچہ بھی ہوتے ہیں۔ جب وہ دونوں اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچے کو پاس جھاڑی میں چھپا دیتے ہیں۔ ہاں ہاں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، سلطان نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا۔ کل صبح تم بھی ان کے ساتھ کھیت میں چلے جانا اور جب وہ بچے کو جھاڑی کے قریب لٹا کے اپنے کام میں مصروف ہو جائیں تو تم انہیں ایسا محسوس کروانا جیسے تم اس بچے کی حفاظت کر رہے ہو۔ عین اسی لمحے میں آ جاؤں گا اور بچے کو اٹھا کر جنگل کی طرف لے جاؤں گا۔ کتے نے بھیڑیے کی کچھ بات نہ سمجھتے ہوئے سوال کیا، جب میں بچے کو اٹھا کر بھاگوں گا تو تمہارا مالک اور اس کی بیوی چیخنے چلانے لگیں گے۔ بھیڑیے نے اسے کہا، بیشتر اس کے کہ وہ میرے پیچھے بھاگیں، تم ان سے پہلے میرا پیچھا کرنے لگنا۔ جس قدر تم بھاگ سکتے ہو میرے پیچھے بھاگنا۔
थोड़ी दूर जाकर मैं बच्चे को छोड़ दूंगा और तुम उस बच्चे को उठाकर अपने मालिक के पास ले आना। इससे वो समझेंगे कि तुमने बच्चे को बचाया है और इस तरह से वो तुम्हें हलाक करने की बजाय तुमसे खुश होंगे और तुम्हारी खिदमत करेंगे। वाकई ही तुम्हारी तरकीब बहुत अच्छी है। कुत्ते ने भेड़िए की तारीफ करते हुए कहा, लेकिन कल ये काम हर हाल में हो जाना चाहिए, वरना मेरा मालिक दिन में किसी भी वक्त मुझे मार सकता है। तुम बेफिक्र रहो, कल सुबह ही हम इस काम को कर देंगे। कुत्ते ने भेड़िए का शुक्र अदा किया और वहाँ से रुखसत होकर अपने घर वापस आ गया। उस रात कुत्ते को नींद ना आ सकी। वो अपनी जगह पर लेटा हुआ और वो सुबह को होने वाले वाक़ये के बारे में सोचता रहा। कभी सोचता कि कहीं ऐसा न हो कि भेड़िया भूल जाए और ना आए, और कभी सोचता कि कहीं ऐसा न हो कि कल सुबह सवेरे ही मालिक मुझे मार दे। इसी डर के धड़के की वजह से वो रात भर एक पल भी नहीं सो सका, क्योंकि उसकी ज़िंदगी और मौत का मसला था। भेड़िए की तरकीब कामयाब हो गई तो वो बच जाएगा, वरना मौत यकीनी है। इसी तरह के ख्यालों में डूबा हुआ वो रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह सूरज निकलने से पहले ही बेदार हो गया और इधर उधर टहलने लगा। अभी तक उसका मालिक और मालकिन बेदार नहीं हुए थे। वो उनके बेदार होने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद गडरिया और उसकी बीवी भी बेदार हुए और उन्होंने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया और नाश्ता करने के बाद वो अपने बच्चे को उठाकर खेत की तरफ रवाना हो गए। कुत्ते ने जब खेत में जाते हुए उन्हें देखा तो वो भी उनके पीछे पीछे चलने लगा और खेत में जाके उन्होंने बच्चे को झाड़ी के करीब लेटा दिया और खुद काम में मसरूफ़ हो गए। दूसरी तरफ कुत्ता बच्चे के पास बैठा था और दिल में सोचने लगा कि अगर भेड़िया ना आया तो क्या होगा। लेकिन भेड़िया अपने वादे का सच्चा था। वो उनसे पहले ही वहां आकर झाड़ियों में छुपा हुआ था। जब भेड़िया ने देखा कि गडरिया और उसकी बीवी बच्चे को वहां पर छुपाकर काम में मसरूफ़ हो गए हैं तो वो बच्चे की तरफ लपका और बच्चे को उठाकर जंगल की तरफ भाग निकला। वो बच्चे को इस तरह से उठाकर भागा था कि गडरिया और उसकी बीवी उसे देख लें, और हुआ भी यही। गडरिया की बीवी ने उसे देख लिया था और वो शोर करने लगी थी, बचाओ बचाओ, मेरे बच्चे को भेड़िया ले गया। गडरिया ने जब बीवी की बात सुनी तो वो भी घबरा गया और पूछने लगा, क्या हुआ, कौन बच्चे को ले गया? अभी अभी एक भेड़िया आया और बच्चे को उठाकर ले गया, जल्दी करो, उसका पीछा करो, जल्दी करो। गडरिया की बीवी जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगी, दौड़ो दौड़ो, मेरे बच्चे को बचाओ। यही वो मौका था जिसके इंतज़ार में वो कुत्ता था। वो उठा और छलांग लगाकर भेड़िए के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन कहाँ भेड़िया और कहाँ वो बूढ़ा कुत्ता। अगर उनमें पहले से बात तय ना हुई होती तो वो उसे कयामत तक भी ना पकड़ सकता था। लेकिन वहाँ भेड़िया भी उसका मुंतज़िर था। जब उसने कुत्ते को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसने भी अपनी रफ्तार आहिस्ता कर ली ताकि कुत्ता भी उसके पास पहुंच जाए। और जब कुत्ता बिल्कुल उसके करीब पहुंच गया तो भेड़िया ने बच्चे को वहीं पर छोड़ा और खुद छलांगे लगाता हुआ जंगल की तरफ भाग गया। कुत्ते ने उस बच्चे को उठाया और थोड़ी ही देर में उस जगह पर वापस आ गया जहां पर गडरिया और उसकी बीवी खड़े शोर कर रहे थे। उन दोनों ने कुत्ते को भेड़िए का पीछा करते हुए देखा था और अब वो ये भी देख रहे थे कि वो बच्चे को वापस ले आया था। दोनों जल्दी से बच्चे की तरफ लपके और उसे गोद में उठाकर उससे प्यार करने लगे। देखा तुमने, गडरिया की बीवी ममनून आंखों से कुत्ते की तरफ देखने लगी कि जिस कुत्ते को तुम गोली मारने वाले थे वो किस कदर वफादार है। अगर आज ये ना होता तो भेड़िया हमारे बच्चे को ले गया था। हाँ, तुम ठीक कहती हो, ये वाकई ही बहुत वफादार कुत्ता है। गडरिया ने कुत्ते के जिस्म पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा, बूढ़े सुल्तान ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसने हमारे बच्चे की जान बचाई है। अब हमें इसकी खिदमत करके इसे आराम पहुंचाना चाहिए ताकि ये बुढ़ापे में आराम से ज़िंदगी गुजारे। फिर वो अपनी बीवी को मुखातिब करते हुए बोला कि तुम जल्दी से घर जाओ, सुल्तान कल से भूखा है, इसे खाने के लिए अच्छा सा खाना दो ताकि ये सैर होकर खाना खाए। और हाँ, इसे मेरे पुराने बिस्तर पर लिटाओ ताकि ये आराम से सोया करे। अब जब तक ये ज़िंदा रहेगा हम इसकी खूब खिदमत किया करेंगे। और इस तरह से उस दिन के बाद बूढ़े सुल्तान की खूब खिदमत होने लगी। और अब वो उसी घर में जहाँ उसे हलाक करने का सोचा जा रहा था वो मज़े की ज़िंदगी गुजारने लगा। अब हुआ ये कि कुछ दिनों बाद वही भेड़िया कुत्ते के पास आया और कहने लगा, मेरे अच्छे दोस्त, मुझे तुमसे एक काम पड़ गया है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद करोगे। बताओ क्या काम है? कुत्ते ने दरियाफ्त किया, जिस पर भेड़िया बोला, मैं भेड़ के लजीज गोश्त से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहता हूँ, इस पर तुम मेरी मदद करो। मैं बूढ़े गडरिये के बाड़े से भेड़ उठाने आऊँगा, जिस पर तुम बिल्कुल खामोश रहना और भौंकना नहीं।
जिस पर मैं भेड़ को उठाकर ले जाऊंगा और मज़े से उसका लजीज गोश्त खाऊंगा। जिस पर कुत्ते ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने मालिक का वफादार हूँ और मैं ये काम हरगिज़ नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकते। भेड़िए ने अपना एहसान जतलाया। ठीक है, मैं उसके लिए तुम्हारा ममनून हूँ, लेकिन मैं अपने मालिक से गद्दारी नहीं कर सकता, कुत्ते ने जवाब दिया। और हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए, भेड़िए ने कहा। और फिर भेड़िया वहाँ से चला गया। गोया कि वो ये समझ रहा था कि कुत्ता उसकी मदद कर देगा और वो उसे मजाक कर रहा है और वो उसकी मदद ज़रूर करेगा। वो यही सोचकर रात के वक्त आया ताकि कोई पली हुई भेड़ उठाकर ले जाए, ताकि वो मज़े से उसका लजीज गोश्त खाए। दूसरी तरफ कुत्ते ने अपने मालिक को सारी बात बता दी थी। उसने ये भी बताया था कि आज रात भेड़िया भेड़ उठाने के लिए आएगा। इस पर गरडिया पहले से ही होशियार हो गया। वो शाम ही से एक मोटा सा डंडा लेकर बाड़े में आ गया और बाड़े के दरवाजे के पीछे छुपकर बैठ गया। भेड़िए को तो पूरा यकीन था कि कुत्ता उसकी मदद करेगा, इसलिए वो पुरसकून और बिना किसी खौफ के बाड़े में आया और इधर उधर घूमकर कोई अच्छी सी भेड़ तलाश करने लगा। उसके ख्वाब ख्याल में भी ये बात नहीं थी कि भेड़िया वहाँ पर छुपा बैठा होगा। अभी वो भेड़ तलाश करने में मसरूफ़ था कि अचानक गरडिया उठा और उसने अपनी लाठी भेड़िए पर बरसाना शुरू कर दी। इस नागहानी हमले से भेड़िया घबरा गया और उसे चोटें भी बहुत सी आई थी, लिहाजा उसने वहाँ से भागने में ही भलाई जानी। जब वो चीखता हुआ बाड़े के दरवाजे से निकलकर भाग रहा था तो उसे सामने कुत्ता नजर आया। तुम गद्दार हो, तुम गद्दार हो, तुमने मुझसे गद्दारी की है, वो चीख चीख कर कह रहा था। मैं तुमसे इंतकाम लूँगा और मैं तुम्हें इस गद्दारी का मज़ा चखाऊंगा। और वो ये कहता हुआ अंधेरे में जंगल में गायब हो गया। और दूसरी सुबह भेड़िए ने एक जानवर को भेजा और कुत्ते को चैलेंज करते हुए कहा कि तुम जंगल में आओ और मेरा मुकाबला करो, इस तरह हमारा मुकाबला हो जाएगा। कुत्ते ने जवाब में कहलवा भेजा कि ठीक है, मैं जंगल में आ जाऊंगा, मेरा इंतज़ार करो। अब मसला ये था कि कुत्ते का कोई ऐसा साथी नहीं था जो इस मसले में उसका साथ दे सकता था। वो दिल में सोचने लगा कि एक तो भेड़िया खुद ताकतवर है और दूसरा जंगली जानवर भी उसके साथ है और मैं अकेला होऊंगा। इत्तेफाक से गरडिए की एक बिल्ली थी जो पैर से लंगड़ी थी। कुत्ते ने उसी को गनीमत जाना और उसने बिल्ली से कहा कि मुझे भेड़िए से मुकाबला करना है जिसके साथ जंगली जानवर भी है, क्या तुम मेरा साथ दोगी? क्यों नहीं, क्यों नहीं? लंगड़ी बिल्ली ने कहा, हम बरसों से एक साथ रहते हैं, अब तुम पर बुरा वक्त पड़ा है तो मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगी। बिल्ली फौरन राज़ी हो गई और कुत्ता उसे लेकर फौरन जंगल की तरफ रवाना हो गया। आगे आगे कुत्ता चलता हुआ जा रहा था और पीछे पीछे बिल्ली अपने पैर से लंगड़ाती हुई मुश्किल ही से चल रही थी। वो जब लंगड़ाते हुए पैर उठाती तो उसकी सीधी दुम कभी ऊपर और कभी नीचे उठती और इस तरह से वो दोनों चलते हुए जंगल के बिल्कुल करीब पहुंच गए। और उधर भेड़िया और जंगली जानवर कुत्ते के इंतजार ही में थे कि उन्हें दूर से अपने दुश्मन आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने देखा कि बिल्ली की सीधी दुम ऊपर ऐसे हवा में लहरा रही है। उन्होंने समझा कि शायद बिल्ली ने तलवार उठा रखी है जिससे सुल्तान हमारा मुकाबला करेगा। और जब बिल्ली नीचे झुकती और ऊपर उठती तो वो ये समझते कि बिल्ली पत्थर उठा रही है और हम पर हमला करेगी और सुल्तान तलवार से लड़ेगा। ये देखकर भेड़िया कहने लगा कि हम इस तरह इनसे नहीं लड़ सकते। इस तरह उस जंगली जानवर ने भी खौफजदा होकर उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तुम ठीक कहते हो, हम इस तरह से इन्हें शिकस्त नहीं दे सकते। चनाचे वो जंगली जानवर जल्दी ही से करीब वाली एक झाड़ी में छुप गए और भेड़िया छलांग लगाकर एक दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। कुत्ता और बिल्ली जब मुकर्ररा जगह पर पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। भेड़िया भी मौजूद नहीं था और वो जंगली जानवर भी नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने उसी जगह पर खड़े होकर अपनी निगाह दौड़ाई, लेकिन वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। इत्तेफाक की बात कि जंगली जानवर अपने आप को पूरी तरह से झाड़ी में नहीं छुपा सका था। उसके कान नज़र आ रहे थे। इतने में जब उसने अपना कान हिलाया तो बिल्ली की उस पर नज़र पड़ गई। वो समझी कि कोई चूहा है। बस फिर क्या था, वो तेज़ी ही से उसकी तरफ लपकी और उस पर हमला कर दिया। उसने जानवर के कान को काट खाया और पंजों से खुरचने लगी। ये तकलीफ उस जानवर से बर्दाश्त करना मुश्किल थी। वो तेज़ी से झाड़ी में से एक तरफ को निकला और चीखता चिल्लाता फुनकारता ये कहता हुआ भागने लगा, ऊपर दरख्त पर देखो, ऊपर दरख्त पर देखो, जिसका कसूर है वो ऊपर दरख्त पर बैठा है। ये सुना तो कुत्ते और बिल्ली ने फौरन दरख्त की तरफ निगाह उठाई। देखा तो ऊपर भेड़िया छुपा बैठा था। उस वक़्त भेड़िए की हालत देखने वाली थी।
وہ خوف اور ڈر کے مارے ایسے کانپ رہا تھا جیسے ابھی نیچے آ گرے گا۔ اے بزدل بدماش، نیچے اترو، تم نے تو لڑنے کا چیلنج کیا تھا، اب آؤ نیچے اترو اور ہمارا مقابلہ کرو۔ لیکن بھیڑیا میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ وہ نیچے اتر آتا۔ اس نے معذرت اور منت کے لہجے میں کہا، میرے دوست سلطان، مجھے معاف کر دو اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہارے ساتھ ایک اچھے دوست کی طرح ہی رہوں گا۔ بوڑھے سلطان نے اسے معاف کر دیا اور وہ درخت سے نیچے اتر آیا اور کتا اور بھیڑیا پھر سے ایک دوسرے کے سچے دوست بن گئے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔